Hello friends, today we will discuss EVS Class 4 New NCERT book The World Around Us Unit 2 Life Around Us Chapter number 3 Natural Trail. In this video we will discuss all the question answers, activity work, extra questions and I will provide you the link of ready to print worksheet, PDF of all question answers and a special homework sheet. So let's get started. Page number 35 Map Reading. From the section note to the teacher, encourage students to locate Madhya Pradesh on the map of India. So here is the map of India. Location of Madhya Pradesh is known as Heart of India. Page number 37. Write. Question number 1. Can you think of rules that should be followed while you are in a zoo or a forest? तो हमें जू और फॉरेस्ट में विजिट करते हुए कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए? Here are some rules. We should not feed animals, we should not tease animals, we should not throw garbage, we should not damage plants or trees. Next is page number 37. Discuss. Question number 1. Why are these rules important to be followed? तो हमें इन रूल्स को फॉलो क्यों करना चाहिए? These rules help keep the forest clean and safe for animals, plants and people. हमें इन रूल्स को फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे फॉरेस्ट क्लीन रहता है, एनिमल्स, प्लांट्स और लोगों के लिए सेफ रहता है. प्लीज़ read these safety rules given in your book. We have already discussed these rules in previous video. इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. पेज नंबर 39. एक्टिविटी 1. Animals in the forest. Look closely at the picture and identify the animals. Divide them into two categories. Animals on land, birds in the sky. तो बुक के पेज 39 पर एक पिक्चर दी गई है जिसमें देखकर हमें एनिमल्स को पहचानना है और उन्हें कैटेगराइज करना है. So the animals on land are bear, monkeys, bisons, and birds in the sky, parrots, blue jay birds. Page number 40. Write. Name some animals including the birds that you have seen. Write any one feature of one of them. हमें कुछ एनिमल्स और बर्ड्स के नाम लिखने हैं और उनके स्पेशल फीचर्स लिखने हैं. हम ऑलरेडी इस चैप्टर में कई एनिमल्स और बर्ड्स के स्पेशल फीचर्स पढ़ चुके हैं. आप चाहें तो अपने फेवरेट एनिमल या बर्ड के फीचर्स भी लिख सकते हैं. जैसे इट इज़ ऑलरेडी रिटन एलिफेंट, लॉन्ग ट्रंक टू टेक फूड एंड वाटर. स्पैरो, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग बीक टू क्रैक सीड्स. आउल कैन सी क्लियरली एट नाइट. डॉग, शार्प सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड थिंग्स. Sunbird, long and sharp beak to suck nectar from the flowers. Page 40. Write. Compare the features of the Indian giant squirrel with the squirrels in your area. Answer. The Indian giant squirrel is bigger and red in color while the local squirrel is smaller and grey and brown in color. तो हमने इस चैप्टर में जो इंडियन जायंट स्क्वायरल के बारे में पढ़ा वो बहुत ही बड़ी होती है और रेड इन कलर होती है. हमने उसकी हाइट भी पढ़ी थी कि वो 3 फीट यानी कि 1 मीटर तक जा सकती है. लेकिन जो लोकल स्क्वायरल होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है और उनका कलर ग्रे एंड ब्राउन कलर का होता है. ये पिक्चर है लोकल स्क्वायरल की एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ इंडियन जायंट स्क्वायरल. नेक्स्ट इज पेज 42. एक्टिविटी 2. Look at the footprints and guess the name of the animals that you think must have come to the pond to drink water. तो हमें इन फुटप्रिंट्स को देखकर गैस करना है कि किस एनिमल के हो सकते हैं. For example, this can be of dog, next is duck and next is bird. Question number 2. Observe and draw the footprint of any animal in the space given below. For example, हम ये ड्रॉ कर सकते हैं, ये काऊ के फुटप्रिंट्स हैं. इसके अलावा आप कोई भी एनिमल के फुटप्रिंट्स ड्रॉ कर सकते हैं. पेज 44. राइट. नेम द बर्ड शोन बिलो. हमें इन बर्ड्स के नाम बताने हैं. पैरट, स्पैरो, डक एंड ईगल. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बर्ड है, इसका नाम है टेलर बर्ड. इसे टेलर बर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अपनी स्पेशल बीक से टेलर की तरह 2 लीव्स को स्टिच करता है और उसके अंदर सॉफ्ट कॉटन, हे, ट्विग्स भरता है नेस्ट बनाने के लिए. नेक्स्ट इज पेज 45. एक्टिविटी 3. Take different food items like grains, berries, fruits, nuts, etc. in a plate. Try to pick these food items using a spoon, a toothpick or a pair of sticks. Fill the table below with the appropriate tools for picking each of these food items. तो ये एक्टिविटी आप इजीली क्लास में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं. हमें एक प्लेट में ये सारे ग्रेन्स, बेरीज, फ्रूट, नट्स, राइस ये सब लेना है और फिर देखना है कि आप इंडिविजुअली इन्हें कैसे पिक कर सकते हैं. जैसे कि ग्रेन्स कैन बी इजीली पिक्ड अप बाय स्पून, berries, pair of sticks, nuts, spoon, pieces of fruit, toothpick. Page number 47. Activity 4.
बर्ड डायरी, ये सबसे इंटरेस्टिंग बुक एक्टिविटी है. बर्ड डायरी. गो नियर अ ट्री, close your eyes and listen to the sounds of different birds. Now open your eyes and focus on one bird at a time. Observe how it moves, what it eats and where it sits. Write your observations in a bird diary. For each bird, note the following. For example, ये एक पेज आपकी बुक में दिया हुआ है. इसकी शीट्स भी रेडी है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक. तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स को बहुत मज़ा आएगा ये एक्टिविटी करके. फॉर एग्जाम्पल, दिस बर्ड इज क्रो. इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. क्लेवर बर्ड, गुड मेमोरी, ओमनिवोरस. तो ये एक ऐसा बर्ड है जो बहुत ही क्लेवर रहता है, इसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, ये आदमियों के चेहरे भी याद कर सकता है. ये ओमनिवोरस होता है, यानी कि ये फ्लैश ऑफ एनिमल्स भी खाता है और ये प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाता है. नाउ अपीयरेंस. हेड कलर ब्लैक, बैक कलर ब्लैक, विंग कलर्स ब्लैक, बीक शेप कर्व्ड, थ्रोट कलर ब्लैक, कलर ऑफ लेग्स ब्लैक. नाउ नेक्स्ट इज पेज नंबर 47, एक्टिविटी 4. Question number 2. List the animals which live in and around water bodies. Fill in the table given below. तो हमें ये एक टेबल दी गई है, इसमें हमें एनिमल और उनके मूवमेंट्स लिखने हैं और उन एनिमल्स का नाम लिखना है जो वाटर में रहते हैं, यानी कि एक्वेटिक एनिमल, या वो एनिमल जो वाटर के पास रहते हैं, यानी कि वाटर में भी और लैंड में भी, जैसे कि एम्फीबियंस. फॉर एग्जाम्पल, फिश, द मूवमेंट इज स्विम्स. क्रैब वॉक्स. फ्रॉग जंप्स. टर्टल swims and walks. Crocodile swims and crawls. Snake slither. Duck swims and walk. Dolphin swims. Now next is page number 49. Right. Question number 1 is, what are the insects that you find at your home and in your surrounding? So the answer is, some insects I find at home and in my surroundings are ants, butterflies, bees, cockroaches and mosquitoes, etc. Question number 2 is, name the insect shown below. तो हमें इन इंसेक्ट्स को पहचान कर इनका नाम लिखना है. ए इज़ बटरफ्लाई, बी इज़ कॉकरोच, सी इज़ बीटल, डी इज़ ड्रैगन फ्लाई, ई इज़ एंट, एफ इज़ प्रेइंग मैंटिस एंड जी इज़ ग्रासहॉपर. नेक्स्ट इज पेज 50, एक्टिविटी 5. आइडेंटिफाई द प्लांट्स बेस्ड ऑन द पिक्चर्स ऑफ द लीव्स गिवन बिलो. तो इन लीव्स को पहचान कर हमें प्लांट का नाम बताना है, जैसे कि ये पीपल ट्री की लीव्स है. नेक्स्ट इज बैम्बू, नेक्स्ट इज गुआवा, next is beetle, next is mango, F jackfruit and G is neem. So next question, page number 50, activity 5. Observe the leaves of different plants in your neighborhood and fill the table. तो next question, इसमें हमें खुद से लीव्स को ढूंढकर उनके कलर, शेप, टेक्सचर और अदर ऑब्जर्वेशंस को लिखना है. जैसे हम ले सकते हैं मैंगो लीफ, बनाना, एप्पल, बनियन. इसके अलावा आप कोई भी ले सकते हैं. जैसे हम देख सकते हैं कि कलर जो है लीव्स का सभी का ग्रीन है. इसके अलावा शेप, सबकी शेप डिफरेंट है. मैंगो की लीफ लॉन्ग है, बनाना की वाइड है, एप्पल की राउंड है और बैनियन की ओवल है. देन टेक्सचर इज ऑल्सो डिफरेंट. मैंगो लीफ का टेक्सचर होता है स्मूथ, बनाना का सॉफ्ट, एप्पल का स्मूथ और बैनियन का रफ. एनी अदर ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंगो लीफ में हमें बहुत अच्छी स्मेल आती है. बनाना लीव्स को साफ़ करके हम उसके ऊपर खाना खा सकते हैं और उसको सॉइल में भी दबा सकते हैं, जिससे वो मैन्योर बन जाता है. तो ये हम ऑलरेडी चैप्टर 2 एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. नेक्स्ट इज एप्पल ट्री की लीव्स काफ़ी मोटी होती है एंड बैनियन ट्री जो नेशनल ट्री ऑफ इंडिया है उसकी लीव बहुत ही थिक होती है. नाउ नेक्स्ट इज पेज 52, एक्टिविटी 6. लीफ ऑटोग्राफ. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो आउटडोर की जा सकती है. हमें क्या करना है कि ग्राउंड में किसी भी एक लीफ को ढूंढना है जो नीचे पड़ी हो. ऑब्वियसली हमें प्लग नहीं करना है. देन शीट पर रखकर उसके ऊपर क्रेयॉन कलर से शेडिंग करनी है, तो हमें एक ब्यूटीफुल पैटर्न मिलेगा, जैसे ऐसा. ये पपाया ट्री की लीव्स है. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हम कर सकते हैं क्लासरूम में भी. पेज 52, लेट अस प्ले द गेम वेब ऑफ लाइफ. Have you ever wondered how all living beings are connected? Let us find out by playing a game. You just have to imagine you are a part of nature, maybe a tree, a bird or even the sun. So friends, we have already studied about this in another video in the explanation of the chapter. Web of life means we all are connected to each other in the ecosystem. This question may get solved through an activity of role play or using the string. Now let us solve this question. For example, plant needs sunlight for making food. Then plants are eaten by deer. Deer is eaten by lion. Lion corpse is eaten by vulture, which in turn is eaten by snake. And snake is eaten by kingfisher. Kingfisher is dependent upon pond. So this is how we can show the connection between these elements of nature.
You can draw more lines through this solution. Okay. Page 55. Let us reflect. Question number 1. Which animal would you love to be? What special abilities would it give you? तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है. इसका आंसर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. जैसे आई वुड लाइक टू बी अ बर्ड सो दैट आई कुड फ्लाई इन द स्काई. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डू यू थिंक डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर? तो प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट होते हैं? आंसर. प्लांट्स गिव फूड एंड शेल्टर टू एनिमल्स. एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग द सीड्स. फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स जो है वो एनिमल्स को फूड देता है, शेल्टर देता है, और एनिमल्स बदले में क्या करते हैं? एनिमल्स जब प्लांट से फ्रूट खाते हैं तो उसके सीड्स को इधर उधर बिखेर देते हैं, जिससे वो उग जाते हैं अपने आप. इसे सीड डिस्पर्सल कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ नेचर साइंटिस्ट? तो जैसा हमने इस चैप्टर में पढ़ा, आभा दीदी जो बच्चों की गाइड थी वो एक नेचर साइंटिस्ट भी थी. नेचर साइंटिस्ट प्लांट और एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं और हमें बताते हैं कि उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करना है. तो a nature scientist studies plant and animal and teaches us how to protect it. Question number 4. The most interesting part, solve the puzzle. हमें इस पजल में से फॉरेस्ट से रिलेटेड वर्ड्स को ढूंढना है. फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसे तो आप ये खुद कर सकते हैं, पर मैं आंसर्स यहाँ पर लिख देती हूँ. किंगफिशर, स्क्वेरल, स्नेक, डियर, एलिफेंट, बैनियन, स्पैरो. इसके अलावा कई एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज और बर्ड्स के नाम इसमें छिपे हुए हैं. आप उसे ढूंढने की कोशिश कीजिएगा. नेक्स्ट इज पेज नंबर 55. लेट अस रिफ्लेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5. टेक ऑन द चैलेंज. प्लान अ नेचर वॉक विद योर फैमिली और फ्रेंड्स इन अ नियर बाय पार्क. To prepare yourself as a guide, identify few plants and animals and study their features and interesting facts which you can explain during the walk. तो आप अपने फ्रेंड्स या टीचर्स के साथ नियर बाय पार्क में नेचर वॉक प्लान कर सकते हो. आपका रोल एक गाइड जैसे होगा. तो गाइड का रोल करने के लिए आपको एनिमल्स, प्लांट, इनकी पहचान होनी चाहिए और उनके बारे में कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए. जैसे सबसे पहले हम नियर बाय पार्क के ट्रीज, प्लांट, एनिमल्स को पहचानेंगे. जैसे ट्रीज, बैनियन ट्री, मैंगो ट्री, पीपल ट्री, ये बहुत ही कॉमन ट्रीज हैं. श्रब्स जैसे हिबिस्कस, जैस्मिन, फ्लावर्स जैसे मैरीगोल्ड, एनिमल्स, कॉमन एनिमल्स जैसे डॉग, काउ, स्क्विरल, एंड बर्ड्स जैसे स्पैरो, पिजन, पिकॉक, इंसेक्ट्स जैसे बटरफ्लाइज, बीज एंड एंट्स. और उसके बाद हमें उनके यूनिक फीचर्स के बारे में जानना होगा. जैसे बैनियन ट्री हैज़ रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम इट्स ब्रांचेस. मैंगो ट्री विच इज़ नोन एज किंग ऑफ फ्रूट्स. पीकॉक इंडिया का नेशनल बर्ड है, इसके बहुत ब्यूटीफुल फेदर होते हैं. एंड स्पैरो इज़ अ वेरी कॉमन बर्ड दैट हेल्प्स कंट्रोल इंसेक्ट्स. ऑल्सो स्पैरो इज स्टेट बर्ड ऑफ दिल्ली. क्वेश्चन नंबर 6. एक्टिविटी रोल प्ले. Role play. Create a scene of a forest in your classroom where students can perform roles of plants and animals and of visitors. While enacting the play, focus on your role to protect animals and plants. तो हमें क्लास में फॉरेस्ट का एक सीन क्रिएट करना होगा. इससे हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को प्लांट्स की, एनिमल्स, ट्रीज, विजिटर्स इन सबके रोल दे सकते हैं. मोटिव होना चाहिए हमारा कि हम नेचर को प्रोटेक्ट कैसे करें, ये हमें सिखाना है. तो डायलॉग्स कैन बी, ईच रोल कैन हैव अ लाइन टू से. जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं. ट्री, जो ट्री बनेगा बच्चा वो बोलेगा आई हेल्प क्लीन द एयर एंड गिव एनिमल्स अ होम. प्लीज डोंट हर्ट मी, आई नीड योर प्रोटेक्शन टू स्टे स्ट्रॉन्ग. एलिफेंट, एक एनिमल बनेगा बच्चा. आई नीड द ट्रीज टू लिव इन द फॉरेस्ट. इफ द ट्रीज आर कट डाउन वेयर विल आई लिव. Then visitor, who is a human, I didn't know the forest was so important. I will help protect it and not harm the animals or plants. ये कुछ एग्जाम्पल है. इसके अलावा आप और एक्सटेंसिव डायलॉग्स रख सकते हैं. देन आइडिया ऑफ द स्क्रिप्ट. हमें क्या करना है, जैसे फॉरेस्ट में कुछ विजिटर्स आते हैं और ट्रीज, एनिमल्स को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर कुछ विजिटर्स पेड़ को कट करने लग जाते हैं. इससे एनिमल्स परेशान हो जाते हैं. फिर एक दिन सभी प्लांट्स, एनिमल, मतलब फिक्शनली उन विजिटर्स को बताते हैं कि फॉरेस्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं. तो विजिटर्स को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होती है और वो प्रॉमिस करते हैं कि नेचर को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी. लेट अस मेक अ पेपर टर्टल. ट्राई यूजिंग एन ओल्ड न्यूज़पेपर. जैसे हम पेपर फोल्डिंग से ये टर्टल बना सकते हैं. ऑल्सो इट इज़ अ इंटीग्रेशन विद मैथ्स ओरिगामी एक्टिविटी. हम इसे मैथ्स में भी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड आउट, राइट द नेम्स ऑफ योर स्टेट एनिमल, बर्ड एंड प्लांट. तो हम यहाँ पर अपनी स्टेट के बारे में लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली. स्टेट एनिमल इज नीलगाय, बर्ड स्पैरो, प्लांट गुलमोहर ट्री. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्टेट राजस्थान. स्टेट एनिमल कैमल, बर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड प्लांट खेजड़ी ट्री. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्टेट वेस्ट बंगाल.
animal Royal Bengal tiger, bird white throated kingfisher, plant mango tree. Next we will talk about Arunachal Pradesh, animal mithun, bird hornbill and plant holong tree. Now we will talk about extra questions. क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स एंड बर्ड्स. तो फ्रेंड्स ये सारे एनिमल्स और बर्ड आपकी बुक में अच्छी तरीके से डिस्कस किए गए हैं. फर्स्ट वन इज ब्लू जे, नेक्स्ट इज किंग फिशर एंड थर्ड वन इज बाइसन, जिसे कॉर भी बोला जाता है इंडिया में. क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ए, विच पार्ट ऑफ द बैनियन ट्री हैंग्स डाउन एंड टचेस द ग्राउंड. तो आप बैनियन ट्री को अच्छे से ऑब्जर्व करिए और बताइए कि इसका कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो ब्रांचेस में से उगता है और ग्राउंड को टच करता है. यस, द करेक्ट आंसर इज रूट्स. इन्हें प्रॉप रूट्स बोला जाता है. बी, विच बर्ड हैज शार्प आई साइट एंड कैन सी एट नाइट. तो ऐसा कौन सा बर्ड है जिसकी आई साइट बहुत शार्प होती है और रात को उसको बहुत क्लियरली दिखाई देता है. यस, द करेक्ट आंसर इज आउल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मैच द एनिमल्स विद करेक्ट मूवमेंट. हमें इन एनिमल्स को इनके करेक्ट मूवमेंट से मैच करना है. स्नेक स्लिथर्स, क्रैब वॉक्स, फिश स्विम्स, फ्रॉग जंप्स. क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिफरेंस बिटवीन पिजन एंड डव एंड क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर. सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया है नोट टू द टीचर सेक्शन में. डव जनरली रेफर्स टू द स्मॉल स्पीशीज वाइल पिजन्स टिपिकली रेफर्स टू द लार्जर स्पीशीज. डव और पिजन दोनों सेम बर्ड की स्पीशीज है, पर डव का साइज थोड़ा स्मॉल होता है और पिजन का बड़ा. डव हैव लार्जर टेल एज कम्पेयर टू द पिजन्स. डव की टेल थोड़ी बड़ी होती है. ऑल्सो पिजन्स आर यूजुअली ग्रे एंड ब्लू इन कलर वाइल डव आर वाइट इन कलर विद स्पॉट्स ऑन देयर बॉडी. तो पिजन का जो कलर होता है ग्रे ब्लू कलर का होता है, लेकिन डव थोड़ा वाइट कलर का होता है, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर ग्रे ब्लू कलर के स्पॉट्स होते हैं. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल. एलिगेटर्स हैव अ ब्रॉड U-shaped smile while crocodiles have a narrow pointed smile. Alligators mostly like fresh water places like rivers and swamps, while crocodile can swim in both fresh and salt water. Alligators tend to be darker in color, almost black, while crocodiles are usually olive or tan. तो alligators जो होते हैं उनकी जो स्माइल होती है वो बहुत ही ब्रॉड होती है और यू शेप की होती है, लेकिन जो क्रोकोडाइल्स होते हैं उनकी नैरो होती है और पॉइंटेड होती है. एलिगेटर्स को मोस्टली फ्रेश वाटर प्लेसेस पसंद होते हैं जैसे रिवर्स एंड स्वैम्प, लेकिन क्रोकोडाइल्स जो है वो फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों में तैर सकते हैं. एलिगेटर्स जो है वो थोड़े डार्क होते हैं कलर में, लेकिन क्रोकोडाइल्स ऑलिव या टैन कलर के होते हैं. So friends, I hope all of you have understood all the question answers. I have tried to cover each and every question of this chapter. Link of previous videos, this chapter's question answer, test, worksheet, all of these is attached in description box. Please have a look. In case download करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं. Thank you for your support. Have a nice day.